میرا نبی بیٹی کے پاس آیا کہ خاتون جنت آٹا گوند رکھی ہے، بیٹی ذرا اٹھ تو سکی، ابا جی آٹا گوند لوں؟ کہا نہیں بیٹی تاخیر نہ کر، اٹھ جلدی سے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا دروازے پہ علی آیا ہے۔ کہا کیوں آئے ہیں؟ کہا تیرا ہاتھ مانگنے آیا ہے، پتا بیٹی تیری کیا رائے ہے؟ اتنا سننا تھا، خاتون جنت کی ہچکی بن جاتی ہے، رو کے کہتی ہیں ابا جان یہ سوال تو مائیں کیا کرتی ہیں، آپ پوچھ رہے ہیں آقا جی یہ باتیں مائیں پوچھا کرتی ہیں۔ یہ جو حضرت علی کا خاتون جنت سے نکاح ہوا نا، اس رشتے کا مشورہ دینے والی ذات حضرت عمر کی ذات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عمر نے حضرت علی سے کہا تھا علی اس سے پہلے کہ حضور بیٹی کا رشتہ کہیں اور کر دیں، جا کے حضور سے بیٹی کا ہاتھ مانگ لو۔ حضرت علی نے کہا یار عمر مجھے شرم آتی ہے، میں یہ بات کیسے کروں گا؟ کہا جانا وہ تو وہ ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ تو دلوں کے حال جانتا، مشورہ دینے والی ذات حضرت عمر کی ہے۔ اور سنیں جو جہیز میں دولت لگی وہ صدیق اکبر کی ہے۔ واہ اگلی بات بتاؤں، جو نکاح کا خرچہ اٹھایا تھا عثمان غنی نے اٹھایا تھا۔ سبحان اللہ۔ ہو کدھر تم؟ ان میں تو اتنا پیار ہے۔ آ گئے علی، حضور کے قدموں میں بیٹھ گئے، حضور کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے۔ حضور نے فرمایا علی خیر ہے؟ کیسے بیٹھے ہو؟ حضور بس آیا تھا، کچھ کہنا چاہتے ہو؟ چپ گئے۔ حضور فرماتے کہو نا علی کچھ کہنا ہے؟ پھر چپ، کیونکہ حیا اتنی تھی۔ پھر حضور فرماتے ہیں علی جو تیرے دل میں ہے تو بتاتا ہے کہ میں بتا دوں کیا سوچ کے سبحان آیا اللہ۔ ہے نا؟ اتنی کنجڑی قومیں بھی پیدا ہو گئی ہیں، کہہ رہی حضور کو خبر ہی نہیں پیٹ پیچھے کی۔ تو حضور بات کر رہے ہیں کہ علی بتاؤں تیرے دل میں کیا ہے؟ تیرے دل میں کیا ہے؟ حضرت علی زیر لب مسکرا دیے۔ حضور فرماتے ہیں علی تو جس خیال سے آیا ہے نا تجھ سے پہلے ابھی جبریل آ کے گیا ہے، تجھ سے پہلے ابھی جبریل آیا تھا۔ سمجھے اہل بیت ہیں کون؟ کہا تجھ سے پہلے ابھی جبریل آیا تھا۔ اس نے کہا کہ حضور رب نے فاطمہ کا رشتہ علی کے ساتھ کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ 3 یا 4 رشتے ایسے ہیں جو جنت میں ہوئے، 3-4 نکاح ایسے ہیں جو جنت میں ہوئے ہیں، ان میں سے ایک نکاح خاتون جنت اور مولا علی کا نکاح ہے۔ سبحان اللہ۔ جو ہے نا سارے لوگوں کہ ابھی جبریل آ کے گیا ہے، اس نے بتایا کہ آپ کا رشتہ اللہ نے کر دیا ہے۔ علی بتا کیا تیرا رشتہ کر دیا جائے؟ حضرت علی رو دیے، کہنے لگے حضور مجھ سے پوچھ کیوں رہے ہیں؟ باپ کے بعد آپ ہی نے تو ہاتھ تھاما ہے، آج تک انگلی آپ کی پکڑ کے چلا ہوں آقا، میری زندگی کے مالک آپ ہیں، میری سانسوں کے مالک آپ ہیں، حضور مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ محبوب جس میں تیری رضا ہے اس میں میری رضا ہے۔ آقا میں وہی ہوں نا جس نے 10 سال کی عمر میں ہاتھ اٹھا کے کہا تھا مکے والے تجھے چھوڑیں یا پکڑیں مگر علی وعدہ کرتا ہے آخری سانس تک تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ آقا میں وہی علی ہوں، حضور جو مرضی کرے۔ آقا کریم اٹھے، گھر تشریف لے کے گئے، توجہ کرنا، گھر تشریف لے کے گئے۔ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ کدھر جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی سے تو بات کر لوں نا۔ آقا رب نے تو فیصلہ کر دیا ہے۔ کہا بے شک رب کا فیصلہ یہی اور ہونا بھی یہی ہے، لیکن امت کو بھی سبق دینا ہے۔ کون سا سبق؟ کہ جب بیٹیوں کے رشتے کی باری آئے نا تو خالی اپنی نہ چلانا، کسی بھی ذریعے کسی بھی اشارے سے بیٹیوں کی بھی مرضی معلوم کر لی جائے۔ نبیوں کا امام ہے، جبریل رشتے کی خبر لایا ہے لیکن اٹھ کے میرا نبی جا رہا ہے بیٹی سے پوچھنے کے لیے۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیوں ایسا کرتے ہیں ہم لوگ؟ ایک بار بھی بیٹی سے نہیں پوچھا جاتا؟ کیا بیٹیوں کو زندگی جینے کا حق نہیں ہے؟ آپ بیٹوں کے رشتے کرتے ہو، 10 بار کہتے ہو پوچھو نا اس سے کہ یہ اس کو نکال تو نہیں دے گا، فلاں جگہ اس کے خالہ کی بیٹی سے رشتہ کر رہا ہوں، پھوپھی کی بیٹی سے کر رہا ہوں، اس کی کیا رائے ہے؟ بیٹے سے 10 بار پوچھتے ہو، بیٹی سے ایک بار بھی نہیں پوچھتے؟ کیا انہیں جینے کا حق نہیں ہے؟ کیوں نہیں پوچھتے بیٹیوں سے؟ اس لیے کہ ان کی طرف سے بے فکر رہتے ہو کہ بیٹی مر تو سکتی ہے لیکن باپ کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دے سکتی ہے۔ اسی ڈر سے تو نہیں، اسی وجہ سے نہیں پوچھتے نا، اور بیٹوں سے اس لیے پوچھتے ہو کہ یہ اتنا خراب ہے، یہ نکاح کے وقت بھی بات کرتا ہے۔ حضرت
जितनी बारातें आपने भी देखी होंगी, पता चला निकाह के वक्त लड़का भाग गया, अब्बा पे जूती चले या कुछ, बेटों को इतनी फिक्र नहीं होती है। लेकिन खुदा की कसम बेटियां बेटियां हुआ करती हैं। हमने तो ऐसे भी निकाह देखे हैं कि बेटी जो है आईएएस होती है, आईपीएस होती है, लेकिन अब्बा कहता मैं जबान दे चुका था 20 साल पहले, मैं जबान अपनी नहीं कटने दूंगा। और भाई सोच समझ के रिश्ते किया करो। पता चला लड़की हिंदी इंग्लिश माहिर है, लेकिन बेटा अंगूठा छाप बैठा है। जब दस्तखत कराए जाते हैं, कलमा तक लड़के को पढ़ना नहीं आता है, लड़की की सारी लैंग्वेजेस अच्छी होती हैं, लड़के को कुछ नहीं आता है। क्या देखा गया है? कहा नहीं नहीं, इसका बाप कह के मरा था, ये लड़का मैंने अपने लिए ले लिया है, अब इसका निकाह मेरी बेटी से होना चाहिए। मैं वसीयत नसीयत की बात नहीं करता, लेकिन आपसे इतना कहना चाहता हूं, खुदा के वास्ते जिस तरह बेटों को जीने का अधिकार होता है, उसी तरह बेटियों को जीने का अधिकार होता है। बाप हजार ऐप जानते हुए कह देता है क्या करूं, मैं जबान दे चुका था, क्या करूं, मैं जबान दे चुका था। बाद में ऐप खुल के आ रखे हैं, लड़का शराब पीता है, लड़का जुआ खेलता है, लड़का नशा करता है, लेकिन बाप फिर भी चुप रहता है। लेकिन कुर्बान जाओ बेटियों की वफा पे, बेटियों की मोहब्बत पे। तुम्हें क्या लगता है कि उन्हें दर्द नहीं होता है, उन्हें तकलीफ नहीं होती है? जाओ, खुदा की कसम खा के कहता हूं, एक एक बेटी की रुखसती जाके देख लो। जब बेटियां रुखसत होती हैं, बाप खून के आंसू रोया करता है, कभी तन्हाई में रोता है, कभी चुप के रोता है, कभी कमरे में रो रखा है, कभी बाहर जाके रो रखा है, लोगों के सामने नहीं रोता है। बेटियां जब सीने पे सर रख के रोती हैं, बाप का कलेजा टुकड़े टुकड़े होता है। वो दुल्हन लेने वालों, जहेज की डिमांड करने वालों, गरीबों को लूट के खाने वालों, सिर्फ एक सवाल करता हूं मैं उन लोगों से जो दौलत को सब कुछ समझते हैं, क्यों रोता है बाप बेटी की रुखसती पे? इसलिए नहीं रो रखा है कि काम करने वाली जा रही है, इसलिए नहीं रो रहा है कि सहारा जा रहा है, वो इसलिए रोता है मेरे मालिक मैंने सूखी रोटी खिलाई, लेकिन आज तक बेटी को इज्जत के टुकड़े खिलाए हैं। मैंने बेटी को चटनी से खिलाया, लेकिन एक लुकमे का ताना नहीं दिया। मेरे मालिक पर आए घर जा रही है, मैं नहीं जानता हूं इसे लुकमे पहले मिलेंगे या ताने पहले मिलेंगे, इसे खाना पहले मिलेगा या गालियां पहले मिलेंगी। वो रो रो के कहता है मेरे मालिक ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। परवरदिगार, मैं नहीं कहता मेरी बेटी को सोने के लुकमे खिला, मैं ये भी नहीं कहता मेरी बेटी के पैर में सोने के तश्त बिछा दे, मैं ये कहता हूं या अल्लाह भले सूखे टुकड़े देना, मेरी बेटी को इज्जत के टुकड़े देना, मेरी बेटी को इज्जत के लुकमे खिलाना। और तुम्हें खुदा का वास्ता किसी की बेटी को दुख ना दिया करो, किसी की बेटी को रुलाया ना करो। बेटी बेटी हुआ करती है। बापों से गुजारिश है जब रिश्ते करने पे आ जाओ तो खुदा की कसम बेटियों से भी एक बार पूछ लिया करो, उनसे भी मशवरा ले लिया करो। मेरा नबी बेटी के पास आया है, खातून जन्नत आटा गूंद रखी है, बेटी जरा उठ तो सकी, अब्बा जी आटा गूंद लूं? कहा नहीं बेटी ताखीर न कर, उठ जल्दी से। कहा क्या बात है? कहा दरवाजे पे अली आया है। कहा क्यों आए हैं? कहा तेरा हाथ मांगने आया है, बता बेटी तेरी क्या राय है? इतना सुनना था, खातून जन्नत की हिचकी बन जाती है, रो के कहती है अब्बा जान ये सवाल तो माएँ किया करती हैं, आप पूछ रहे हैं। आका जी ये बातें माएँ पूछा करती हैं। हैरत की बात है जब इतनी बात खातून जन्नत ने कही है, मेरे नबी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फरमाते हैं फातिमा कहां से लाऊं खदीजतुल कुबरा, वो जब दुनिया से गई थी तेरा हाथ मेरे हाथ में दे के कहा था या रसूल अल्लाह मैं जा रही हूं, मेरी फातिमा का ख्याल रखिएगा। यही रुक के एक बात कहना चाहता हूं, तुमने दुनिया देखी है यार, जब माएँ जाया करती हैं सबसे ज्यादा फिक्र उन्हें अपने छोटे बच्चों की होती है। भले कितना पैसा माँ छोड़ के जाए, लेकिन जाते जाते कहती है सुनो मेरे छोटे का ख्याल रखना, मेरे छोटे बेटे का ख्याल रखना। कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, लेकिन माँ को छोटों की फिक्र होती है। बाप दुनिया से जाता है, छोटे भाई का हाथ पकड़ के बड़े भाई के हाथ में दे के कहता है देख मैं जा रहा हूँ, इसे मेरी कमी महसूस ना होने देना। खुदा की कसम माँ बाप जाते जाते भी आखिरी सांसों की फिक्र नहीं करते, औलाद की फिक्र किया करते हैं। अल्लाह अकबर। जब हजरत खदीजतुल कुबरा के विसाल का वक्त आया है, जो सैयदों की नानी है, उनकी बात करने लगा हूँ। जब विसाल का वक्त आया आपने खातून जन्नत को आवाज दी या फातिमा, जी अम्मी, का जल्दी कर बाबा को बुला के ला। बात लंबी होगी अगर तफसील से बयान करूं। हजरत फातिमा उठी हैं, हुजूर को बुलाने गई। आका करीम सहन में टहल लगे हैं, बुलाया, कहा जी या रसूल अल्लाह तशरीफ लाए। आका करीम आ गए। हजरत खदीजतुल कुबरा कहती है महबूब, कहा जी, कहा आज तक कुछ नहीं मांगा, 25 साल तेरे साथ गुजार चली हूँ, देख मेरे कपड़ों पे पैबंद लगे हैं, लेकिन सुन मेरी मोहब्बत में कोई पैबंद नहीं लगा है। मैं तेरे कदमों पे कुर्बान हो गई, मैंने दौलत तेरे नाम पे कुर्बान कर दी, मैं जा रही हूँ, आज कुछ मांगना चाहती हूँ। इतनी बात कही हुजूर रो दिए। कहा खदीजा इसी बात का तो इंतजार था,
किसी दिन तू भी मुझसे कुछ मांगे। रोज मुझसे कहती है हुजूर आपको क्या चाहिए, आज तू क्या चाहिए। खदीजतुल कुबरा ने रो के कहा था या रसूल अल्लाह, ये रहा मेरा गले का हार, मेरे इंतकाल के बाद ये हार मेरी ज़ैनब को दे दिया जाए। का ये रहे 8 प्याले जो मेरे बाप ने मुझे लकड़ी के दिए थे, का ये मेरी उम्मे कुलसूम को दे दिए जाए। या रसूल अल्लाह एक लकड़ी का संदूक है, ये मेरी रुकैया को दे दिया जाए। आका करीम सुन रहे हैं। यहाँ आते आते हजरत खदीजतुल कुबरा ठहर जाती हैं। आका करीम ने खातून जन्नत हजरत फातिमा के सर पे हाथ रखा, जिनकी उम्र शरीफ 5 या 6 बरस है। आगे बढ़ा के कहते हैं खदीजा फातिमा को भूल गई हो या जानबूझ के कुछ नहीं दे के जा रही हो। इतना कहना था हजरत खदीजा रो देती हैं, कहती हैं या रसूल अल्लाह, ज़ैनब को मैंने दिया, रुकैया को मैंने दिया, उम्मे कुलसूम को मैंने दिया, लेकिन मेरी फातिमा को आप देंगे। मेरे नबी फरमाते हैं बता तो सही, तूने एक बेटी को हार दे दिया, दूसरे को प्याले दिए हैं, तीसरी को संदूक दिया है, बता फातिमा को क्या देना है। तब खदीजतुल कुबरा ने कहा था या रसूल अल्लाह, जो बड़ी बेटियों को देना था वो मैं दे चली हूँ, जो छोटी को देना वो आपको देना है। का क्या देना है। हजरत खदीजतुल कुबरा ने आंसू पोंछते हुए कहा था या रसूल अल्लाह, मेरी फातिमा को कभी रोने न देना। आका मेरी बेटी को मेरे बाद कभी रोने न दिया जाए। मेरे महबूब ये मेरी लाडली बेटी है, तन्हाई में मेरे भाग बड़ी तड़पेगी, अभी छोटी है, मेरे बगैर रहने की आदि नहीं है। आका करीम फरमाते हैं फातिमा वो दिन है आज का दिन है, मैंने कभी तुझे रोने नहीं दिया। ए बेटी कहां से लाऊं खदीजतुल कुबरा, कहां से लाऊं तुम्हारी मां। अल्लाह अकबर। आका करीम ने जब इतना कहा, कहती है अब्बा मैं लायक बेटी हूं, जा जिसमें तेरी रजा है उसमें तेरी फातिमा ज़हरा की रजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, वाह ये वाह रिश्ता वाह, हुआ, क्या बात है। ये रिश्ता हुआ। दुल्हन भी बेमिसाल है, दुल्हा भी बेमिसाल है। सुभान अल्लाह। न दुल्हन का जवाब है न दुल्हा का जवाब है। लोग हसीन बनने के लिए उबटन मलते हैं, हल्दी लगाते हैं, क्या क्या चीजें करते हैं, मगर वाह रे अली तेरे हुस्न को सलाम, तेरी पारसाई को सलाम। हुजूर फरमाते हैं फातिमा मैंने उससे तेरा रिश्ता किया है कि जो रब का भी दोस्त है और मेरा भी दोस्त है, सुभान अल्लाह। जो रब का भी प्यारा है मेरा भी प्यारा है, उससे तेरा रिश्ता किया है। हुजूर ने रिश्ता कर दिया, निकाह हो गया। बात लंबी होगी, निकाह हो गया।